हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर चैनल एसआर स्टडी सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम फ्रांसिस बेकन के लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, जिसका आंसर सभी क्वेश्चंस के लिए ये एक ही होगा। इसलिए वीडियो को बहुत ही केयरफुली देखिएगा। आइए ज़्यादा टाइम स्पेंड न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। Francis Bacon was a prolific writer and his subjects covered practically everything under the sun. He wrote a notable history of Henry VII, many pamphlets on current political topics. His most popular work, Essays, published in 3 editions in his lifetime. The first edition was published in 1597, the second edition was published in 1612, and the third was published in 1625. He was a great scholar and intellectual. His essays teach us permanent moral principles which everyone must know. यानी कि हमें स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दे देना है, फिर राइटर के बारे में बता देना है। फ्रांसिस बेकन इज आल्सो कॉल्ड सर फ्रांसिस बेकन बिकॉज ही हैड बीन लॉर्ड हाई चांसलर ऑफ ब्रिटेन। फ्रांसिस बेकन को सर फ्रांसिस बेकन भी कहा जाता है क्योंकि वे ब्रिटेन के लॉर्ड हाई चांसलर रह चुके थे। ही वॉज बोर्न इन 1561 एंड डाइड इन 1626. He is also known as Lord Verulam and father of empiricism, like John Locke and David Hume. He followed both natural philosophy and scientific method. He is a multi-talented man. He is a writer, a philosopher, a scientist, a lawyer, and a essayist. He was best known for his essays. He started writing his essays influenced by Michael de Monte, who is the father of essays, and Francis Bacon is the father of English essays. यानी कि फ्रांसिस बेकन माइकल डी मोंटे से प्रभावित होकर अपने ऐसे को लिखना शुरू किया था। और ये कौन है? माइकल डी मोंटे, ये फादर है एसेज के। और फ्रांसिस बेकन कौन है? ये इंग्लिश एसेज के फादर हैं। क्वीन एलिजाबेथ यूज्ड टू कॉल फ्रांसिस बेकन द यंग लॉर्ड कीपर। ही वाज नाइटेड इन 1603। उन्हें 1603 में नाइट की उपाधि दी गई थी। ही वाज द लॉर्ड चांसलर फ्रॉम 1618 to 1621. He had to go to jail for bribery in 1621. उन्हें 1621 में रिश्वतखोरी के लिए जेल जाना पड़ा था। He knew Latin and English language very well. वे लैटिन और अंग्रेजी भाषा को अच्छी तरह से जानते थे। He wrote his early works in Latin and later essays in English. उन्होंने अपनी शुरुआती जो रचनाएं हैं वो लैटिन भाषा में लिखी और बाद में जो ऐसे हैं वो अंग्रेजी में लिखे। He used to write in aphoristic style. Alexander Pope called Francis Bacon the wisest, brightest and meanest of mankind. इस कोटेशन को आप ब्लैक पेन से अलग लिखना ताकि ये थोड़ी अलग दिखे और एग्जामिनर इससे अट्रैक्ट होके आपको नंबर दे। फिर हमें फ्रांसिस बेकन के कुछ फेमस क्योट्स लिख देने हैं, जैसा कि आपको इस स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इन क्योट्स के बाद हमें बेकन्स के एसेज के बारे में बता देना है, क्योंकि लगभग ये सारा जो टॉपिक है वो बेकन के ऐसे के ऊपर ही है। इसलिए क्वेश्चन को घुमा फिरा कर चाहे कैसा भी पूछा गया हो,
आंसर इसी पर जाएगा जो हमने इसमें लिखा है। बस हमें एंडिंग थोड़ी सी बदल देनी है क्वेश्चंस के अनुसार। बेकन्स ऐसे डील विद ए वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट्स। बेकन के ऐसे डील्स करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर। बेकन डिफाइंड हिज ओन ऐसे एज डिस्पर्स्ड meditations set down rather significantly than curiously. His essays have been called distilled wisdom. Bacon is a past master of simile and metaphor because his Bacon is a past master of simile and metaphor because his prose style is marked by an extensive use of images, similes, metaphor, and analogies. Brevity and strict economy mark Bacon's choice of words. He would never use two words where one could serve his purpose. Macaulay says that Bacon had two distinct styles, and these two styles extract from his two essays of studies and of adversity. Bacon was a child of Renaissance, and therefore he advocated Renaissance values. Critics consider Bacon to be the best representative of the spirit of Renaissance. Like a typical Renaissance man who was worldly, inquisitive, यूटिलिटेरियन एंड प्रैक्टिकल, यानी कि बेकन जो है वो पुनर्जागरण की संतान थे और इसलिए उन्होंने जो पुनर्जागरण मूल्य है उनकी वकालत की थी। और जो आलोचक हैं वो बेकन को पुनर्जागरण की भावना का सबसे अच्छा प्रतिनिधि मानते हैं, एक विशेष पुनर्जागरण व्यक्ति की तरह जो संसारिक जिज्ञासु, उपयोगितावादी और व्यवहारिक था। He himself described his essays as civic and moral exhortations. उन्होंने यानी कि बेकन्स ने खुद ही अपने एस्से को नागरिक और नैतिक उपदेशों के रूप में वर्णित किया है। He writes, My essays are close to the business and heart of individuals. वह लिखते हैं, मेरे निबंध व्यवसाय और व्यक्तियों के दिल के करीब हैं। Bacon's essays are purely intellectual and rational and lack an emotional element. बेकन के निबंध विशुद्ध रूप से बौद्धिक और तर्कसंगत है और उनमें जो भावनात्मक तत्व है उनका अभाव है, कमी है। The morality he teaches us have mixed elements of work and worldliness. वह हमें जो नैतिकता सिखाता है उसमें काम और दुनियादारी के मिश्रित तत्व हैं। His essay of simulation and dissimulation is a good example of this kind of mix of morality and wisdom. He says that if success is not achieved through traditional and ethical means, then there is no harm in adopting unethical methods. यानी कि बेकन कहता है कि अगर पारंपरिक और नैतिक तरीकों से सफलता नहीं मिलती है तो अनैतिक तरीकों को अपनाने में कोई हर्ज नहीं है। Some critics called Bacon the worst of all और the devil's advocate. कुछ आलोचकों ने बेकन को सबसे खराब या डेविल्स एडवोकेट कहा है। But this is wrong. He also gives moral advice. Bacon says that there is no harm in adopting wrong methods to reach high position. But when he attains a high position, यहाँ पर 2 बार लिखा जा चुका है, ये एक ही सेंटेंस, इसको आप एक बार लिख लेना। ही मस्ट बी फेयर, यानी कि बेकन कहता है कि उच्च पद पर पहुंचने के लिए गलत तरीके अपनाने में कोई भी बुराई नहीं है,
लेकिन जब हम उच्च पद पर आसीन हो जाते हैं तो उससे निष्पक्ष हो जाना चाहिए। दिस एडवाइस इज ए वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ हिज यूटिलिटेरियनिज्म। यह सलाह उनके उपयोगितावाद का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। Thus, there is no pure morality in his essays। इस प्रकार उनके निबंधों में शुद्ध नैतिकता नहीं है। नैतिकता तो है लेकिन शुद्ध नैतिकता नहीं है। इट इज रियलिस्टिक, यह यथार्थवादी है। और इस प्रकार अगर यूटिलिटेरियनिज्म का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसकी एंडिंग इस प्रकार होगी। अगर कोई और क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उसकी एंडिंग आंसर की उस क्वेश्चन के हिसाब से हो जाएगी। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। आई होप आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं नोट्स और PDF के लिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे ऐसी एक और वीडियो के साथ। बने रहिए SR स्टडी सॉल्यूशन के साथ।